Hello student, very good afternoon to all of you. Welcome back to physics class. Today is lecture number 6, chapter 3, motion in a plane. Before this, we have discussed about the theory part of motion in one plane, motion in rectilinear path, or we can say one dimension motion, and problem based on that. Okay, speed, velocity, acceleration, then motion under gravity, okay, kinematic equation, we have discussed lot, okay. लेकिन अभी आज हम जो करने वाले दैट इज द सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव फिनिश द टॉपिक, जो थ्योरी पार्ट हमने खत्म किया है उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है विच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. अगर इफ यू गेट अ टाइम देन वी कैन सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो विच आर आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, राइट. तो सबसे पहले अभी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ओके. सो कल भी हमने एक या दो सम लिया था टेक्स्ट बुक का. आज हम तीसरा सम लेने वाले. वी आर गोइंग टू टेक थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम द टेक्स्ट. क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन है वो. थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द पीडीएफ फाइल जो आपको पीडीएफ दिया है. पीडीएफ में आप न्यूमेरिकल देख सकते हो, राइट, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट. तो कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर for 30 minutes, okay, then at 30 km per hour for next 15 minutes, and then 70 km per hour for next 45 minutes. What is the average speed of the car? Okay, so what we will do here, we will just draw the path along which the car is moving. So suppose this is my path. Suppose if I say A, right, so in the first 30 minutes, okay, they have given the time. Suppose if I am taking this point P, from A to B, it is moving with the speed of V1 is equal to 50 kilometer per hour. What is the speed of the car in the first 30 minutes? 30 minutes. Let this time I am taking T1, okay. In the second time T2 is equal to, it is T2 is 15 minutes. T2 is 15 minutes. What was the speed in the second case? 30 km per hour. 30 km per hour. Okay. And the next journey, which was at a speed of 70 km per hour. 70 km per hour. And the time duration for this 45 minutes. स्पीड भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, तो मतलब इट विल कवर मोर डिस्टेंस, ओके. मान लो इसको जो टाइम हमने लिया है T3, और द स्पीड फॉर दिस इज V2, दिस इज V3, ओके. तो यहाँ पे हमने स्पीड एज्यूम किया है V1, V2, V3 एंड V4. दे आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ओके. तो हम पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे. व्हाट आर द गिवन हियर, बिकॉज फिजिक्स के न्यूमेरिकल में गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप लोग गिवन प्रॉपरली लिखोगे नहीं तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल करेक्टली, ओके. सो लेट्स राइट द गिवन डेटा फर्स्ट. सो v1 is equal to 50 kilometer per hour. During this speed, the car was moving with the speed for 30 minutes. Okay, it was moving for 30 minutes. तो 30 minutes का इसको अभी देखो यहाँ पे बच्चों किलोमीटर पर आवर दिया है वेलोसिटी स्पीड, और टाइम जो दिया है वो मिनट्स में दिया है, तो कोई तालमेल नहीं बन रहा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइमिंग दिया है उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो 30 मिनट्स के कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होते हैं, आधा घंटा होता है, तो 1/2 आवर्स. सो इट विल बी 1/2 आवर में डायरेक्ट लिख लेते, वो कॉमन मालूम है सबको. देन V2 इज इक्वल टू, जो सेकेंड स्पीड दिया है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ओके. इसका टाइम है 50 मिनट्स. दिस इज ऑल्सो टू बी कन्वर्टेड इनटू आवर्स, सो इट कैन बी कन्वर्ट 15/60 which is equal to 1/4 hour, 1/4 hour. Then the third speed is V3 is equal to 70 kilometer per hour. Suppose this times T3 is equal to how much? It is 45 minutes.
again this is to be converted into hours. 45 minutes means 3/4 hour. Okay, so 45 upon 60, which is equal to 3/4 hour. So we got the time here, we got the velocity here, but we don't know the distance, right? So to calculate the average speed, to calculate average speed, average speed formula is total distance covered, divided by total time taken. We know this formula because we have discussed in theory part. Okay. Abhi let us assume here the distance covered when the speed was 50 km per hour v1. So at that time the distance was s1. If I am taking this distance is s1. Okay. If I take A to B s1, B to C if I am taking s2, and C to D if I am taking it is s3 distance. Okay. So during this journey, average speed is equal to total distance is equal to s1 plus s2 plus s3 divided by time t1 plus t2 plus t3. We need to calculate average speed, V average. This is simple, V average. Okay, now how can we write the expression for distance s1 here if the velocity is given? We know the standard formula, V is equal to distance upon time. Here s is the distance, okay? Here s is the distance. So V1 is equal to s1 t1. This can implies s1 is equal to V1 into t1. Similarly, s2 is equal to V2 into t2. S3 is equal to V3 into t3. Okay, so this is the distance we can calculate. Now let us substitute here, that is average speed, V average is equal to क्या आएगा? S1 can be V1 कितना है? 50 multiplied by 1/2 plus 30 multiplied by 1/4 plus 70 multiplied by 3/4. Okay, divide by 1/2 plus 1/4 plus 3/4. So this is just the fraction, addition of fraction. So we can solve by using mathematics. Okay, so 50 upon 2, just make the denominator same here. तो यहाँ पे मैं 50/4 करूँगा तो I can write it to 100/4 plus 30/4 plus 70 into 3, 210 divided by 4. Okay, अपॉन टाइम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई आएगा. So this can be written as 2 plus 1 plus 3 upon 4. This is simple mathematics. Okay, nothing else. ज़्यादा difficult नहीं है. So 100 plus 30 plus 210 divided by 4 divided by 2 plus 1 3 plus 3 6 upon 4. अभी देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? फिर सिंपली ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचेगा. तो यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं. सो 240 plus 100 इट इज 340 डिवाइड बाय दिस इज 6. ओके, तो स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा ये? दिस स्पीड इज 6 5 30 रिमेनिंग 4 बिकॉज 6 6 36 होता है. 6 6 36 वापस 6 6 36 एंड दिस इज इन किलोमीटर पर आवर. इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. सो द आंसर इज 56.66 किलोमीटर पर आवर. बहुत सिंपल है एवरेज स्पीड.
यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस निकालना है, राइट? वो है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, let's go on the next numerical, which is a diagram based question given in the textbook. लुक एट द ग्राफ. जो पेज नंबर जो भी होगा 35 36 कुछ तो होगा ग्राफ में, उसमें पीडीएफ आपको जब जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 4. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन velocity, I will write VT graph. In velocity time graph, okay, velocity time graph as shown in the adjoining figure. अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ तो you will find it easy to understand. Okay, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे. So they have given the graph. This is O, this is A, this is B, this is C, this is E, and this is D. Okay, and in between here it is 1, 2, this is 3, 4, 5, sorry, this is 4, this is 5, and D point is 6. In middle 7 and the last part is 8. C part is 8. Correct? And the speed is here. Maximum speed is here 20 meter per second. So velocity v meter per second along y axis and the time along x axis. Okay? अभी देखते हैं एक एक क्वेश्चन देते हैं. What they ask to find. पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है initial speed of the car. If the graph start from the origin. If the graph start from the origin, so what this indicate? It indicate that it is start from zero, start from rest. Okay. So initial velocity first. Initial velocity u is equal to 0 meter per second. This is the answer. You get 1 mark. Simply just write the answer from the graph. Okay. Then the second question they ask, maximum speed attained by the car. Look at the graph carefully. Okay. In the graph carefully, if you observe, this is the maximum speed. What is the maximum speed here? 20 meter per second. So maximum speed is equal to 20 meter per second. So simple. Then the third question they ask. Third question is part of the graph showing zero acceleration. Okay, zero acceleration means what? There is no change in velocity if the body is moving with the constant velocity. और constant velocity के लिए हमने we have studied the graphs of velocity time. तो if the graph, the straight line which is parallel to time axis, okay, at that time it gives the constant velocity and zero acceleration. Okay, so यहाँ पे देखो AB जो line है, that AB line represents constant speed or constant velocity, okay, which is 20 meter per second and no acceleration. A is equal to 0 in the AB line. तो AB line जो है वो क्या इंडिकेट करता है? The body is moving with constant velocity, showing zero acceleration. यहाँ पे acceleration 0 है because we have constant velocity. You can write here constant velocity and acceleration 0. That's all. कितना easy है, बहुत simple है. Then the fourth question, part of the graph showing constant retardation. Okay, तो constant retardation मतलब क्या होता है? यहाँ पे the car is decelerating और body slow down हो रही है, right? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है.
तो जस्ट लुक एट द ग्राफ BC, या तो BC जो लाइन है यहाँ पे द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन यूनिफॉर्मली. क्यों यूनिफॉर्मली? बिकॉज इट इज द स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन है. अगर वो कर्व होती, इफ इट इज लाइक दिस कर्व, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म, बट इट इज स्ट्रेट लाइन. सो दैट्स व्हाई द body is decelerating or retarding uniformly, that is the BC. Okay, so along BC, right, so body is retarding uniformly. Is that clear? Why retarding uniformly? Because constant change in velocity goes on changing constantly, continuously, okay, equally in the decreasing form. And the last question, that is B, what is distance between, okay, the distance traveled by the car in first 6 seconds. तो पहले 6 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, मतलब आपको you have to make that area shaded, okay, तो just find the distance traveled by this shaded portion. And this diagram is trapezium. What do you call this? Trapezium. And we know that in the velocity time graph, if you take the area bounded by the graph or area bounded by the curve, okay, so that gives information about the distance travel. Okay, so fifth one is distance travel from 0 to 6 seconds or first 6 seconds, right? So distance is equal to area bounded by area enclosed by OABDO again, or D, right? So it will be area enclosed by OABDEO, right? What geometrical figure it forms? It forms a trapezium. That is the area of trapezium. Okay, enclosed by trapezium. OABDEO, right? That is what the diagram form. तो हमको पता है area is equal to क्या होता है? Distance is equal to, okay, distance is equal to, so area of the trapezium is sum of the parallel sides 1/2 into bracket sum of parallel sides multiplied by time, multiplied by height. Okay, more parallel side height. तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर. अभी देखो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन से, AB and OD are parallel side, और ये जो BD होगा, that BD will be the height. So we can write AB plus OD multiplied by BD, that is height. Okay, so here 1/2 into bracket AB कितना है हमें यहाँ पे, AB अगर निकालना है तो यहाँ पे कितना है 6, और ये कितना है 3, तो 6 minus 3 कितना बचा 3 प्लस OD O2D कितना है 6 multiplied by BD कितना है, BD is this one, vertical y axis 20, so which is equal to 1/2 9 into 20, 2 ones are 2, 10s are, so this is 90 meter. So 90 meter is the distance covered by the car or the body. Just take a screenshot. Okay, next sum. अभी सम नंबर 7 है, 7 नंबर का सम है. नंबर का सम.
अभी ये काफ़ी बड़ा है, ओके, सो नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल्सो, सो जस्ट गो थ्रू द PDF फाइल of the textbook, so and see this numerical. A metro train runs from station E to B and to C. A से B. तो पहले वो थोड़ा सा रफ आइडिया स्केच करते, मेट्रो स्टेशन A, फिर B और फिर C. D भी है शायद, D नहीं, ओके ठीक है. Metro train runs from station A to B and to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to station B. Right? तो पहले A to B में जाने के लिए उसको कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है. 4 मिनट यानी कितने सेकंड हो गए? 240 seconds. 6 4 24. तो 240 seconds लग रहे. The train halts at station B for 20 seconds. बाद में वो B पे 20 सेकंड रुक रही. Then it start from, तो A to B कितना लग रहा है यहाँ पे टोटल टाइम? 240 सेकेंड, 240 सेकेंड, ओके. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है, B पे रुक रहा है. Again it stop for 20 सेकेंड, it stop for 20 सेकेंड, right? And from B to C, okay, 20 सेकेंड. Then it start from station B and reaches station C in next 3 minutes. तो next 3 minutes मतलब इट इज 180 सेकेंड्स. तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 180 सेकेंड टू रीच फ्रॉम B टू C. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ? 240 प्लस 20 प्लस 180. तो कितने टोटल कर लेते हैं? 4 6 और 8, 6 प्लस 8 14, कैरी 1. तो 440. So total timing required to reach the train from A to C is for 40 seconds. 440 टोटल टाइम लगा उसको E to C में पहुंचने के लिए, राइट? अभी देखो आगे कंडीशन क्या दी है. At the start the train accelerates for 10 seconds. तो इसमें से जो 240 सेकंड है उसमें शुरू के 10 सेकंड उसको एक्सेलरेटर में लग गया, ट्रेन को एक्सेलरेशन में लग गया, राइट? To reach a constant speed of 72 km per hour. To achieve the speed 72 km per hour. वो अचीव करने के लिए उसको 10 सेकंड लगे. The train moving at a constant speed is brought to rest in 10 seconds at the next station. जब वो अगले स्टेशन पे आएंगी, B स्टेशन पे, वापस उसको स्लो डाउन करने के लिए 10 सेकंड लगे. Okay, 10 seconds it takes to slow down. Then plot, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है. Plot the velocity time graph for the train traveling from the station A to B and to C. Calculate the distance between the station A, B and C. तो A, B स्टेशन और B and C के बीच में वो डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट? अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, राइट? सो स्पीड इज गिवन, स्पीड ऑफ द ट्रेन is given 72 km per hour, which is equal to 72 into 5 upon 18. 18 1 the 18 4 the, which is over by the 20 meter per second. तो 20 meter per second is the speed. Okay? तो यहाँ पे हमको अभी ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करते. So let us start with point A. A से स्टार्ट करते, राइट? और शुरू के 10 सेकेंड जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको y एक्सिस जैसा डॉटेड दिखाता हूँ टू अंडरस्टैंड बेटर. तो इनिशियली का ट्रेन क्या एक्सेलरेट हो रही है अप टू 10 सेकेंड टू अचीव द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे मैं स्पीड लूंगा अलोंग y एक्सिस. तो यहाँ पे मान लो स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले 10 सेकेंड लूंगा. सो दिस पॉइंट, सो 0 to 10, the first 10 second used for acceleration of the train, right, to achieve the speed this 20 meter per second. Okay, उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, it continues, right, लेकिन B तक आने के लिए, ओके, स्टेशन A से यहाँ पे B है, कहीं पे समवेयर हियर B है,
बी स्टेशन में टोटल कितना टाइम लिया होते हैं 4 मिनट, मतलब 240 सेकेंड बराबर। लेकिन 240 सेकेंड्स फॉर द डिवाइडेड, पहले 10 सेकेंड तो चले गए एक्सेलरेशन में, बाद में लास्ट के भी जो 10 सेकेंड है दैट इज फॉर स्लो डाउन रिटार्डेशन के लिए, ओके। लेकिन एंड हियर इट इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद 10 सेकेंड बाद इट इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं एंड दिस इज स्लो डाउन, ओके। द ट्रेन इज स्लोइंग डाउन, तो यहाँ पे मैं स्लो कर रहा हूँ इसको, स्लाइडिंग दिखा रहा हूँ एंड एट दिस पॉइंट ये 240 सेकेंड है, 4 मिनट में वो रुक रहेगा अगले स्टेशन पे। लेकिन उसके पहले 10 सेकेंड क्या लिया उन्होंने फॉर द स्लोइंग डाउन, तो ये कितना होगा 230, दिस विल बी 230। आई बात समझ? अभी स्टेशन बी पे तो 20 सेकेंड हॉल्ट दे रही, पानी भरना होगा, ओके। ट्रेन में डब्बे भरने होंगे, तो यहाँ पे वो 20 सेकेंड में यहाँ पे रुक गई 20 सेकेंड, राइट। तो अभी देखो 240 प्लस 20 कितना हुआ 260, तो इट विल स्टार्ट एट द 260 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं 260 लूंगा। लेकिन वापस जब वो बी स्टेशन से सी स्टेशन पे जाएगी, अगेन इट विल एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड्स टू अचीव द सेम स्पीड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो वापस मुझे एक्सेलरेट करना पड़ेगा यहाँ पे, सो आई विल ड्रॉ एक्सेलरेटेड हियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताऊंगा, ओके। दिस इज फॉर 10 सेकेंड, तो ये आ गया आपका 270, ये 270 आ गया 270 सेकेंड के बाद इट विल अगेन ट्रैवलिंग यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से जा रही, अगेन इट विल ट्रैवल विद द कांस्टेंट स्पीड। और अगले स्टेशन पे बी टू सी स्टेशन पे कितना मिनट लग रहा है उसको 3 मिनट लग रहा है, राइट। अभी देखो बच्चों यहाँ पे 260 प्लस 180, 260 प्लस 180 कितना हुआ 440, तो यहाँ पे 440 सेकेंड पे रुक जाएंगे। और 40 सेकेंड यहाँ पे सी स्टेशन है विच इज एट 440 सेकेंड, बराबर। लेकिन 440 के पहले वो स्लो डाउन होगी पहले 10 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे स्लो डाउन होगा ये, तो 10 सेकेंड माइनस कर दो 430। So this is what the graph of velocity time. This is the velocity time graph for the train moving along the railway track. Okay? देखो ये आपने क्या किया पहले, ये टोटल टाइम कितना लग रहा है पहले 4 मिनट। स्टेशन A to स्टेशन B it takes 4 minutes. So I have taken 0 to 240 seconds. आई बात समझ में? When the train reaches to B, it halts for 20 seconds. Okay? तो 20 सेकेंड का हॉल्ट लिया, तो यहाँ पर मैंने 20 सेकेंड ऐड कर दिया, तो इट बिकम 260 ईयर। वापस इट विल एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड्स टू अचीव द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन 272 to 430 it will travel with the uniform speed, that is 20 meter per second, and after 430 second for the next 10 second to reach at C it will retarded, it will slowing down, okay। So this is all about the graph of the, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, प्लॉट ग्राफ तो प्लॉट हो गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी, ओके। अभी ए बी और बी सी के बीच में डिस्टेंस कितना वो निकालना है। हमको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंड ऑल दीज आर दी व्हाट रेक्टिलिनियर मोशन के प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा, राइट, बिकॉज द मोशन इज स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर। तो टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ये भी ट्रापेजियम फिगर है, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। व्हाट इज द ट्रापेजियम, ओ इसको नाम दे देंगे कुछ, तो ये तो ए स्टेशन हो गया, दिस इज स्टेशन ए,
राइट, ये बी हो गया, उसको कुछ नाम दे देंगे, ए बी, सॉरी ए बी क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, नाम दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी ट्रापेजियम, ए पी क्यू बी। What is the formula of a trapezium? Previous प्रॉब्लम में हमने देखा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये और ये, अभी ये कितना होगा, ये डिफरेंस देना पड़ेगा, दिस विल बी 230 माइनस 10, तो 230 माइनस 10 कितना है 220, तो 220 प्लस ये वाला कितना है 0 टू बी, ओके ए टू बी, दैट इज 240, राइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड अपॉन 2, 1/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है, हाइट कितना है 20, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 2 1 जा 2 10 जा, राइट, सो दिस विल बी, अभी इस दोनों का एडिशन करेंगे, 0 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4 इंटू 10, ओके, सो क्या आएगा बच्चों 4600 मीटर, विच इज इक्वल टू 4.6 किलोमीटर। So this is the distance between A and B. बराबर। Similarly, can we find the distance between station B and station C? Yes, we can calculate. Just find the area of this trapezium. 1/2 sum of the parallel side, this plus this. Okay, this plus this. So the distance between B and C, distance between B and C इक्वल टू क्या है यहाँ पे, B and C इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्या नाम दिया उसको, उसको नाम देंगे BRSC, ट्रापेजियम BRSC। ओके, सो इट विल बी 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अभी देखो यहाँ पे सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कैसे निकालते हैं, ये निकालना है आपको, 430 माइनस 270 कितना होता है, 470 माइनस 270, सॉरी 430 माइनस 270 प्लस ये कितना है 260 एंड 430, ओके सॉरी 440, तो 440 माइनस 260, ओके, पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड आएगा 20, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रापेजियम। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट, अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है 0 0 0 आ जाएगा, 13 में से 7 गई 6 कैरी 1, तो एक बचा 160 प्लस, अभी इसमें सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 0 आएगा, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8 एंड कैरी आएगा, यस कैरी आएगा, और माइनस 3 180 इंटू 20, तो विच इज अभी 2 1 जा 2 10 यहाँ पे आ जाएगा, इसका एडिशन करेंगे तो 0 4 और यहाँ पे 3 और इंटू 10, तो आंसर इज 3400 मीटर। तो किलोमीटर में कितना आएगा 3.4 किलोमीटर। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुली ग्राफ जो है प्लॉट करना है। अगर ग्राफ ठीक से आपने प्लॉट किया then only you will able to find the distance. Okay, in mean velocity time graph we have to take the area under the curve or area enclosed by the geometrical figure. वो कुछ भी हो सकता है, rectangle हो सकता है, triangle हो सकता है, trapezium हो सकता है, any figure, any quadrilateral form, any geometrical figure form, we can find the area. Okay, that will be the displacement of distance. So just take a screenshot. Okay, go on the next question. और थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अभी 1 डायमेंशन मोशन के टेक्निकल न्यूमेरिकल सब मैंने सॉल्व कर लिए। ओके,
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं. अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. कितना नंबर का था वो? 7 8 8 दे दीजिए इसको. अ कार मूव्स at a constant speed of 60 kilometer per hour for 1 kilometer and 40 kilometer per hour for the next 1 kilometer. For the next 1 kilometer. What is the average speed of the car? What is the average speed of the car? Average speed of the car. Okay. तो यहाँ पे क्या आता है प्रॉब्लम में, कई बार बच्चे बिना सोचे समझे, विदाउट कैलकुलेशन, ब्लाइंडली दे आर गिविंग द आंसर फॉर दिस. हाँ, 40 और 60 के बीच में ना एवरेज निकाला ना 50 किलोमीटर पर आवर, बट द आंसर विल नॉट बी 50 किलोमीटर पर आवर. दैट इज सॉल्व. कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि 50 आता है क्या नहीं. राइट, 50 आएगा ही नहीं. सो लेट्स गिवन. सो स्पीड v1 लेते. लेट v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे d1 ले रहे डिस्टेंस, s1 इज इक्वल टू s1 लेते 1 किलोमीटर एंड v2 इज इक्वल टू v2 इज 40 किलोमीटर पर आवर और s2 इज 1 किलोमीटर. देखो बच्चों यहाँ पे टाइम नहीं दिया है. ओके, निकालना क्या हमको? एवरेज स्पीड ऑफ द कार ही आ रही है ना. यस, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2. बट यार तो टाइम दिया ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी कैन कैलकुलेट, हमारे पास फॉर्मूला है. राइट, तो स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s अपॉन t. राइट, सो बट हमारे पास फॉर्मूला है, बट v is equal to s upon t. So t is equal to s upon v. Right? So t1 is equal to s1 upon v1. t2 is equal to s2 upon v2. सिंपली सी बात है. राइट, तब कैलकुलेट करते हैं. s1 प्लस, लेकिन यहाँ पे s1 s2 दिया है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ओके, 1 अपॉन v1 कितना पहले 60 प्लस 1 अपॉन 40 which is equal to time. This is time t1, 1 upon 60, 1 upon 40 hours. Okay, this is what the t1 and t2 हमने निकाला. ये फार्मूला में डालना है. s1 s2 दिया है 1 किलोमीटर, इसलिए क्या लिया? 1 upon 60 plus 1 upon 40. So this will be 2 upon 40 plus 60 divided by 60 into 40. So this will be, how can we solve this? 2 into 60 into 40 divided by 100. Okay, so it will be 6 to the 12, 12 for the 48. Okay, 48 kilometer per hour is the average speed of the car. हमको पहले क्या लगा था? 40 और 60 के बीच में दे दो 50. नो, इट इज कमिंग 48 किलोमीटर पर आवर. यही भी बच्चे अटकते हैं, बिना सोचे समझे सीधा वो कैलकुलेट करते हैं. तो ऐसा मत करो. गो टू द प्रॉपर चैनल, सिस्टमेटिकली सॉल्व करो, यू विल गेट अ करेक्ट आंसर. टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस.
चलो अगला सम लेते हैं. A body moving along straight line. A body moving along straight line. Body moving along straight line with uniform acceleration. With uniform acceleration. Uniform acceleration has a speed. Has a speed. Has a speed 15 meter per second when passing a point P and 35 meter per second 35 meter per second when passing a point B when passing a point B in its path. Okay, calculate its speed at the midpoint of PB. Calculate its speed at midpoint of PB. बराबर, so simple. अभी इसका पहले हम जरा पाथ निकालेंगे तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो विल ड्रॉ द पाथ. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज P, लास्ट पॉइंट इज B. ओके, व्हेन द बॉडी स्टार्ट क्रॉस दिस, कितना स्पीड था यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड. व्हेन इट पासेस पॉइंट P, so it acquires the speed 15 meter per second, and when it pass through point B, जब B पॉइंट पास करोगे तब कितना स्पीड था 35 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड लेट द मिड पॉइंट बी C. यहाँ पे C ले लेते, तो यहाँ का वेलोसिटी हमको निकालना है, VC टू बी कैलकुलेटेड. ओके, तो यहाँ पे पहले हम लेंगे दिस इज VP. सो लेट VP इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, राइट, and VB is equal to 35 meter per second. हम assume कर रहे थे, right? Point P and point B are there. Okay? तो यहाँ पे क्या आएगा PC is equal to CB, दोनों equal है, right? Which is to be taken as मान लेते हैं, मान लो this is small l, this is small l, distance. Okay, length जो L ले लेते हैं, where C is the midpoint. Then अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है that we can use. That equation can be used b square minus u square which is equal to twice as. Okay, तो यहाँ पे लेकिन s जो है s will be the what, this small distance l, और acceleration हमको वो तो इसमें चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ इसमें. तो let us write the first, पहले पार्ट के लिए हम ले लेते हैं, तो it can be written as vp square minus, okay, लेकिन यहाँ पे फाइनल, इसका फाइनल पोजीशन क्या है C है, तो यहाँ पे C आएगा. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर दिस पाथ. ये पाथ के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है C, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी VP. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज VC स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू लेंथ L. ओके, तो ये पहला वर्ड आ गया हमको. उसके बाद लेट अस राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस. अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर द पाथ, for path CB, okay, which is equal to L, for path CB which is equal to L. So how can we write this expression? That can be written as VB square minus VC square is equal to 2 times acceleration into L. ये भी L है. Okay, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. This is equation 1, this is equation 2. So you will get the expression, कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पे VC स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर विच इज इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर. ओके, ये VC स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये VP इधर आ जाएगा, VB स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर विच इज इक्वल टू,
ओके, अभी यहाँ पे इसका एडिशन क्या आएगा बच्चों, 2vc² विच इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ vb एंड vp हियर। तो vb कितना है, vb इज 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ओके, आई विल सॉल्व हियर। सो 2vc² इज इक्वल टू 2vc² इज इक्वल 35 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर बहुत इजी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, जब जो नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 का स्क्वायर क्या था 25, ये बात समझे। उसके पहले 10th प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का अगला डिजिट क्या है 4, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा 1225। सो सिंपल टू राइट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर whose unit place is 5। ओके, माइनस मान लो आपको 15 का स्क्वायर नहीं पता, ऐसे इमेजिन करते। ओके, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद क्या नंबर है 1 का आगे का नंबर क्या था 2, 1 into 2 तो 225 आ गए। सो सिंपल। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 2vc² इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा साइड में कर लेते हैं नीचे। लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन 225 दिस समथिंग 225 4 से 12 या ओके। सो इट इज 1000, कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। तो vc² इज इक्वल टू 1000 अपॉन एडिशन हो गया, सॉरी ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, दिस बी ऐड, दिस इज ऐड, तो यहाँ पे आएगा 1450। ओके, 1250 और 200 1450, 1450 विच इज इक्वल टू 1450। तो VC इज इक्वल टू, तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया 2 7 जा 225 725। सो VC² इज इक्वल टू, VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 725। तो इसको इसे रखो। ओके, या इसको लिख सकते हैं 26.93, VC इज इक्वल टू 26.93 मीटर पर सेकेंड। This is what the speed of the car, speed at a point C. Okay, so फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट सम ले लेते हैं अभी। कितना नंबर का, जो भी 9 होगा, जो व्हाट नंबर इट इज। अ स्टोन इज थ्रोन स्ट्रेट अप, अ स्टोन is thrown up from the ground with a velocity 20 meter per second at what two instances would it be 15 meter above the ground, 15 meter above the ground. Okay. So g is equal to 10 meter per second square दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या पूछा है, स्टोन इज थ्रोन, मतलब जैसे बॉल फेंका है, राइट, थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर से फेंका अप, राइट, एट व्हाट इंस्टेंट वुड इट बी 15 मीटर अबव द ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर। ओके, तो यहाँ पे पहले हम गिवन लिख लेते। तो व्हाट आर दी गिवन दिया है, गिवन इज इक्वल टू, हमने स्टोन को थ्रो किया ऊपर, तो वी हैव गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, and the displacement is given 15 meter
इज द डिस्प्लेसमेंट एंड g का वैल्यू दिया है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज गिवन राइट. सो यहाँ पे क्या आएगा, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय जो हमारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है बराबर. लेकिन यहाँ पे स्टोन को ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, प्लस माइनस, तो माइनस आएगा डेफिनेटली, बिकॉज वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे g जो है वो माइनस लेना पड़ेगा. सो a इज इक्वल टू माइनस जी, ओके, फॉर अपवर्ड मोशन. तो s इज इक्वल टू u 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. टाइम दिया नहीं लेकिन ये दिया है, एस दिया है, एस इज गिवन दैट इज 15. ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते थोड़ा. 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर. ओके, सो इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो या वी कैन राइट अवर हमारे इसके जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उससे बना दें, मेक दिस पॉजिटिव. तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 which is equal to 0, right? So 15 फाइजा कितना होता है, 15 फाइजा 75, राइट. प्रोडक्ट शुड बी 75 और जो एडिशन है वो क्या आना चाहिए, माइनस 20. तो 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 0 बराबर. यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना, माइनस 20, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 75 आ गया. ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये. सो अभी यहाँ पे कॉमन निकालते कुछ तो. सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन विल बी 5t, तो t माइनस 3 इंटू t माइनस 5t is equal to 0. So this can be written as 5t minus 3 and t minus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, t is equal to 3 seconds. हो यहाँ पे 5 कॉमन निकाल सकते हैं, वी कैन टेक 5 कॉमन. तो फैक्टर बराबर आ रहा है क्या, 5t को कॉमन निकाला तो t माइनस 3, यहाँ पे t माइनस 3 बराबर है t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 1. ऐसे आ रहा है. ओ हियर इट विल बी 5, सॉरी गड़बड़ी जो हो रहा है, 5t माइनस 5 आएगा, इसलिए 5t माइनस 5, दिस इज t माइनस 3. ओके, सो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 5t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. ये पहला आएगा टाइमिंग इंस्टेंट, और दूसरा क्या है, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. So you will get 2 instances, right? That is t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds above the ground after 15 minutes. Okay, above 15 meter. Take a screenshot. Let's have one more sum, और एक sum आएगा. A packet is released from a balloon ascending vertically with a speed of
speed of 20 meter per second, 20 meter per second. The packet reaches the ground, in 16 seconds. Find the height of the balloon. Height of the balloon at the time packet was released. यहाँ पे G दिया है, G is equal to 10 meter per second square. Okay. So here look at the problem once again. A packet is released from balloon ascending vertically with a speed of, तो यहाँ पे balloon निकालते हैं. This is the balloon just like a parachute. Okay, ये balloon है. Then they are asked, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं balloon को. It's very big. छोटा सा balloon ड्रॉ करते हैं. This is a balloon. Okay, and here it's the ground. ये ground है. And वो ऐसे फेंका है पैकेट. It goes up, ऊपर जाके then नीचे आ रहा है. Okay, ऊपर जाके नीचे आ रहा है. So initially it is going up. Okay, बलून से ऊपर से ऐसे फेंका है, ऐसे जा रहा है. तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड बलून का, right? And this is the distance S from the point where the packet is released. Okay, तो यहाँ पे let S is equal to H, height ले लेते हैं, height of the balloon at the time packet is released. Okay, let's take the point. Then U is equal to, यहाँ पे initial velocity U is equal to 20 meter per second. Then अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर फेंका है पैकेट, तो A is equal to minus G, which is equal to minus 10 meter per second square, right? और acceleration भी वही 10 meter per second, and time दिया है उन्होंने, the time is given 16 second. The packet reaches the ground, जो reaching time है, that time is equal to 16 second. बराबर? तो टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन दिया है. तो यहाँ पे हमको हाइट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए वो विच फार्मूला वी आर यूजिंग? द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज S is equal to ut plus half at square. सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ करना नहीं है. S is equal to 20 multiplied by 16 plus 1/2 multiplied by minus 10 into 16 का स्क्वायर. That's all. Okay, so S is equal to, ये कितना आएगा? 16 to the 32, 320. ये माइनस हो जाएगा, -1/2 into 10 into 16 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 256. It is 256. तो 2 1 जा 2 5 जा. Okay, so S is equal to 320 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ज़्यादा ही आ रहा है. तो ओके, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आता है 1280. दिस इज 1280. तो S इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्शन विल बी -960. आप सब्ट्रैक्शन कर लो. ओके, नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब इट इज द हाइट. ओके, ऊपर से नीचे आ रहा है. तो एक्चुअली हाइट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है. ओके, पर ये डिस्प्लेसमेंट है तो -960 मीटर ऑन द ग्राउंड. तो दिस is 960 meter is the height of the packet where it is released. So take a screenshot, and आज बस इतना ही लेंगे. And we will next class we will be having the 2-dimension motion. अगले क्लास में हम लेंगे 2-dimension motion. Okay, उसमें भी we will find instantaneous velocity, instantaneous acceleration, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, जो हमने 1-dimension मोशन में कैलकुलेट किया है वैसे ही अभी 2-dimension मोशन के लिए वो कंसिडर करके वी विल कैलकुलेट. ओके, सो गुड डे.